Hey Jarvis, Good morning, ma'am. my day is a bit packed today. Can you help me in completing some of my tasks? Sure, ma'am. I can see आपकी नई ऐप का थोड़ा कोड पेंडिंग है. Let me complete that for you. Moreover, I can see कि फ्रिज में काफी groceries खत्म हो गई हैं. I am ordering them right away. Also, I can see in your calendar कि रात को आपकी friends के साथ get together है. Let me find a venue for you guys. I know your preferences. If you need any other help, I am here 24/7. Yes, AI agents are here. पूरी दुनिया में सारी AI communities में हर जगह यही बात हो रही है. 2025 में. So I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions and billions of different AI agents. Eventually, probably more AI agents than there are people in the world. Agent जो आपका code. Devin is the first fully autonomous AI software engineer. And what that means is that Devin has the ability not just to write code, but to do all of the steps of the software engineering workflow. And so आपकी science problems. The discovery of all of physics, near limitless intelligence, and abundant energy. I do think all of those things, and probably a lot more we can't even imagine, are maybe not that far away. 2025 will be full of agentic AI systems. आज जिन कामों के लिए आपको दूसरों पर रिलाई करना पड़ता है, वो सब काम AI agents की हेल्प से किए जा सकेंगे. These digital AI workers, we call them AI agents, are essentially like digital employees. But you'll be able to take the agents and they'll start to work together, right? So your agent and my agent and her agent and his agent will all combine to solve a new problem. 10 autonomous agents to help with tasks like sales, customer service, and accounting. But अगर AI agents ही सब कर लेंगे, then what will happen to our current jobs? What industries are at most risk? How will the world look like in future? Will we become too dependent on AI systems? Who will be held responsible if AI goes wrong? ऐसे हजारों questions हैं. But out of those, the most important question is, what is the fate of humanity? The Matrix is a computer-generated dream built to keep us under control in order to change a human being into this. No. This is not going to happen, at least not in near future. So what will actually happen? इसको समझने के लिए हमने सारे क्वेश्चंस को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है. Humans always wanted to make an intelligent machine, a mirror for their brains. रिची रिच कार्टून में आयरोना का कैरेक्टर तो याद ही होगा. वो रिची के घर का सारा काम कुछ सेकंड्स में कर दिया करती थी. ऐसा ही एक कैरेक्टर रोजी का था जेटसन्स में. इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उसमें ह्यूमन इमोशंस को समझने की भी स्किल्स दिखाई गई थी. 90s के फेमस सिटकॉम स्मॉल वंडर्स की विकी को कौन भूल सकता है? It's not a child. It's a machine. It's an android. Here, look. See? और ऑप्टिमस प्राइम वो तो मेरा खुद का फेवरेट था. ट्रांसफॉर्मर्स में तो एआई रोबोट्स की पूरी गैलेक्टिक रेस देखने को मिलती है. बट ये सब सिर्फ फैंटेसीज नहीं थी. एआई वाज अ वर्क इन प्रोग्रेस सिंस 1900s. 1956 वो साल था जब जॉन मैकार्थी ने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को ऑफिशियली कोट किया. जहाँ एक तरफ कार्टून्स, एनिमे और मूवीज़ में एआई मशीन को डिपिक्ट किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही थी. But it made a bold move in 1997, the classic game between IBM Deep Blue AI and world chess champion Garry Kasparov. Deep Blue ने गैरी को हराकर सेंसेशन मचा दी and it was all over the news then. But again, उस टाइम तक कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जहाँ AI की सक्सेस दिख रही थी. लेकिन अगर आज की बात करें तो AI has become enormously powerful. Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Where we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. But the question is how? To understand this, हमें ये समझना पड़ेगा कि AI actually काम कैसे करता है और कौन से वो components हैं जो AI को इतना powerful बनाते हैं. Let's start with the first one, which is algorithms. एक कंप्यूटर से कोई भी टास्क करवाने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एल्गोरिथम बोलते हैं. आज के एआई सिस्टम एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एल्गोरिथम जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं उसका यूज़ करके बनाए जा रहे हैं. ये एल्गोरिथम ह्यूमन के ब्रेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड हैं. जिस तरह ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके इंट्रैक्शन की वजह से हम अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये एल्गोरिथम काम करते हैं. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके इन एल्गोरिथम्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शन को सिमुलेट कर सकें. उसके बाद इन एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया जाता है स्पेसिफिक टाइप का टास्क परफॉर्म करने के लिए. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करना.
जैसे जैसे पेरेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स बच्चे को नई नई चीज़ें बताते हैं तो बच्चे के दिमाग में न्यूरल कनेक्शन फॉर्म होते जाते हैं। जैसे मान लो 2-3 दिन रोज़ बच्चे को एप्पल की इमेज दिखाई जाए तो उसके ब्रेन में इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, और जब भी फ्यूचर में वो बच्चा एप्पल की इमेज देखेगा तो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इमेज किस चीज़ की है। बिल्कुल उसी तरह इन एल्गोरिथम्स को स्पेसिफिक टाइप का डेटा दिया जाता है ताकि वो उस काम को करने में बेटर होते जाएं। जैसे अगर मुझे एक AI बॉट बनाना है जो कोडिंग कर सके तो मैं उसे बहुत सारे कोडिंग के स्नैपशॉट्स पर ट्रेन करूंगा यूजिंग टेक्निक्स लाइक सुपरवाइज्ड एंड रीएनफोर्समेंट लर्निंग, ताकि जब उससे बाद में कोड लिखने के लिए बोला जाए तो वो ट्रेनिंग के टाइम में दिए गए डेटा का यूज़ करके नया कोड ईजिली लिख पाए। इस AI बॉट की कोड की क्वालिटी डायरेक्टली इस बात पर डिपेंडेंट है कि ट्रेनिंग के टाइम पे उसको डेटा किस तरह का दिया गया था। जिससे हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट विच इज़ डेटा। वी ऑल यूज सो मैनी ऐप्स दीज डेज। फूड ऑर्डर करना हो तो वी हैव स्विगी एंड जोमेटो, दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ चैट करना हो तो वी हैव व्हाट्सएप, और अगर कहीं जाने के लिए बुकिंग करनी हो तो इक्सिगो या मेक माई ट्रिप जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर एक टास्क अचीव करने के लिए वी हैव एन ऐप टुडे। इन ऐप्स का यूज़ करते टाइम वी नोइंगली और अननोइंगली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डेटा, जैसे ट्रांजैक्शंस, हमारी लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमारी ट्रैवल प्रेफरेंसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स। हम सब कलेक्टिवली इतना ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अब बिग डेटा जैसी टर्म बहुत कॉमन हो चुकी है। यही डेटा AI एल्गोरिथम्स के लिए फाउंडेशन का काम करती है। जितना एक्यूरेट, डाइवर्स और रेलिवेंट डेटा होगा उतना ही AI का परफॉर्मेंस बेटर होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कॉल डेटा इज़ द न्यू ऑयल। इसी डेटा का यूज़ करके अब कंपनी स्पेसिफिक टाइप के एजेंट्स बना रही हैं विच आर कॉल्ड AI एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक AI सिस्टम बनाते हैं जो ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज करे तो हमें इस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए अलग अलग तरह के फेस का डेटा देना पड़ेगा, डिफरेंट एज ग्रुप्स, स्किन टोन्स, फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशंस का डेटा। अगर डेटा बायस होगा या इनकम्प्लीट होगा तो AI का रिजल्ट भी बायस हो सकता है। Then we notice if the profession tends to be like of power, like CEO or doctors, it does tend to default to lighter skin tone people and like most likely perceived male, as opposed to professions of not very high income do tend to default to like darker skin tone and females. And this is not a true representation of the current state of the world. This is a big problem. इस वजह से डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन AI डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल स्टेप है। इस डेटा को इफेक्टिवली स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करना AI की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, विच लीड्स टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज़ कंप्यूटेशन पावर। इतने सारे डेटा पर इन AI एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए वी नीड पावरफुल स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रोचिप होती है जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके कंप्यूटर प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक प्रोसेसर में होंगे उतना ही वो पावरफुल होता है। प्रोसेसर तो 1950 से ही बनाए जा रहे थे, बट उस टाइम पर प्रोसेसर्स में बहुत ही कम ट्रांजिस्टर्स होते थे जिसकी वजह से वो इतने पावरफुल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, इन 1980s इंटेल 80386 प्रोसेसर में सिर्फ 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स थे। इफ़ वी कंपेयर इट विद टुडे तो आज NVIDIA H100 में 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स प्रेजेंट है। इस फिनोमिनल अचीवमेंट का रीज़न है मूरेस लॉ। गॉर्डन मूरे, हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंटेल, उन्होंने 1965 में ये ऑब्जर्व किया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता जा रहा था। As a result, in every 2 years, the number of transistors in a processor were getting doubled. And that became famous as Moore's Law. जिसकी वजह से प्रोसेसर्स की कंप्यूटेशन पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली गई। आज इन डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स यानी GPU का यूज़ किया जा रहा है। As we now know, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स न्यूरल नेटवर्क पर काम करती हैं। इसमें हर न्यूरॉन का हर दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन कैलकुलेट करना होता है। जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा उतना ही ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लगेगा। इसकी वजह से बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल और अमेज़ॉन अपने AI सिस्टम्स के लिए हाई परफॉर्मेंस GPU क्लस्टर्स का यूज़ करते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स और GPU क्लस्टर्स का यूज़ करके पूरी दुनिया में पब्लिकली अवेलेबल डेटा पर ट्रेन करके ही OpenAI ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी ChatGPT बनाया है, जो आज AI के इस रिवोल्यूशन का फ्रंट फेस बन गया है। These new AI systems are so powerful and they are getting even better as we speak. Experts like NVIDIA CEO say that the way people think about Moore's Law, which is 2x every couple of years, we're going to be on some kind of a hyper Moore's Law. AI अब ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकती है जो आज से पहले सिर्फ ह्यूमंस के लिए पॉसिबल था।
So with this in mind, we have to see how AI is and will impact the job market. Look at this chart published by Stanford University in 2023. It compares human skills like image classification, reading comprehension, visual reasoning with AI. And what is shocking is कि 2023 में ही AI इन skills में human से better perform कर रहा था. By 2024, coding जैसे highly complex areas में भी ChatGPT models like O1 Preview और Mini already top candidates को challenge कर रहे हैं. AI की skills exponentially बढ़ती जा रही है. अगर IMF की इस रिपोर्ट को देखें तो approximately 60% jobs, yes, you heard it right, 60% jobs AI integration से impact होंगी. Although ये impact different countries के लिए अलग हो सकता है. Emerging markets में AI का impact 40% तक होगा. But one thing to note here is, इनमें से majority cases में AI human labor को complement करेगा. मतलब ऐसी jobs जो completely replace नहीं होंगी, but AI will help and assist humans, ताकि वो अपना काम ज़्यादा productively कर पाएँ. If you look at IT sector, जिस पर इसका direct impact है, वहाँ अब software developer will not be writing the complete code by themselves. Rather, GitHub copilots और agents का use करके वो अपना काम तेजी से कर पाएंगे. Now they can spend more time in ideation and execution. Product managers, Figma AI जैसे tools का use करके better wireframes, concepts और ideas generate कर सकते हैं, जो ultimately businesses को तेजी से grow करने में help करेंगे. जुडिशियल सेक्टर को देखें, जहां इतने केसेस बस सालों तक चलते रहते हैं. AI can expedite this. It can read multiple legal documents faster than human, जिसका यूज़ करके जजेस और लॉयर्स जल्दी केसेस को क्लोज कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली, इंडिया में केसेस को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए AI का यूज़ ऑलरेडी किया जा रहा है. एस्टोनिया जैसी कंट्री स्मॉल केसेस और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए AI का ऑलरेडी यूज़ कर रही है. मेडिकल सेक्टर में भी AI कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन. इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ डिजीजेस सिम्टम के आने से पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं. AI आपकी मेडिकल हिस्ट्री को पढ़कर पैटर्न्स डिटेक्ट करता है और प्रिडिक्ट करता है कि आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स होने का रिस्क है, और फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही आपके लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट, प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट प्लान बना देता है. जैसे आयुर्वेद में हर बॉडी टाइप के लिए एक अलग प्लान होता है, वैसे ही AI आपकी बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड करके आपका हेल्थ असिस्टेंट बन सकता है. जापान करंटली एक ऐसे AI टूल पर काम कर रहा है जो पेशेंट के ऑर्गन्स की इमेजेस को एनालाइज करके फ्यूचर में कैंसर होने की लाइक्लीहुड को डिटेक्ट करता है. एग्रीकल्चर की फील्ड में भी AI का इम्पैक्ट होगा. थिंक ऑफ अ फार्म फील्ड जहां AI बैक्ड ड्रोन्स ऑटोमेटिकली सॉइल की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं और पेस्ट्स और डिजीजेस को ट्रीट करते हैं. वाटर वेस्ट ना हो इसलिए इरिगेशन को और एफिशिएंट बनाते हैं. Isn't it an interesting problem to solve? ये सब टेक्निक्स फार्मर्स को क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेंगी. कुछ कंपनीज जैसे फाइलो, क्रॉप पेन ऑलरेडी इस पे काम भी कर रही हैं. एंड दिस इज़ नॉट ऑल. ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं जैसे एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, जिसमें AI का यूज़ ऑलरेडी हो चुका है और फ्यूचर में ये और डीपली इंटीग्रेट होगा. बट कुछ जॉब्स स्पेसिफिकली जो रेपिटेटिव टास्क इन्वॉल्व करती हैं बिना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के, वो हाई रिस्क कैटेगरी में है. एज पर फ्यू रिपोर्ट्स, रोल्स जैसे डेटा एंट्री, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग पोजीशंस, बेसिक कस्टमर सर्विस फंक्शंस, रिटेल चेकआउट्स, इन सब को AI काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगा. कस्टमर सर्विसेज जैसे काम में AI 24/7 अवेलेबल रहकर यूजर्स की क्वेरीज को फास्टर एड्रेस कर सकता है. सो इन दिस इवॉल्विंग लैंडस्केप AI टूल्स के बारे में अवेयर रहना और उनको यूज़ करना क्रिटिकल हो गया है. इट इज़ ट्रू दैट AI विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, बट ह्यूमंस विद AI स्किल्स विल. मल्टीपल AI टूल्स ऑलरेडी फ्री ट्रायल्स के लिए अवेलेबल हैं. आप AI का यूज़ करके अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हो, टाइम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो और जल्दी न्यू टॉपिक सीख सकते हो. गूगल नोटबुक, LM और परप्लेक्सिटी AI जैसे टूल्स का यूज़ करके फास्टर रिसर्च कर सकते हो. एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है अब AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे Wix, Devin AI और Canva का यूज़ करके बिना एक्सटेंसिव टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अपनी वेबसाइट और कंटेंट क्रिएट कर सकता है. की टूल्स इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए. इसी तरह मिडजर्नी, रनवे ML और सोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से कंटेंट क्रिएशन और भी फास्ट हो गया है. So in all, AI is providing many benefits and new opportunities, but there are few questions rising in the AI race. गवर्नमेंट AI की पेस को अडॉप्ट कर पाएंगी? जियोपॉलिटिकल एरिना में कैसे कंट्रीज AI को रेगुलेट करेंगी? AI एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर सकता है. अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो AI जैसे टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे और दूसरा सेक्शन जो AI को कंट्रोल करेगा. AI हर जगह होगा. आप पूरे टाइम सर्वेलेंस में हो.
बट वॉट अबाउट प्रिवेसी? डी फेक्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। डी फेक्स का यूज़ करके किसी को डिफेम किया जा सकता है, प्रोपोगेंडास ड्राइव किए जा सकते हैं, कुछ इलेक्शंस तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस भी हो चुके हैं। इन सब को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस क्या स्टेप लेंगी? एआई मॉडल्स की आउटपुट इस बात पर डिपेंड करती है कि उनको किस डेटा पर ट्रेन किया है। अगर डेटा में ही कोई बायस होगा तो इसका रिजल्ट गलत ही होगा। एंड दिस रियली हैपेंड इन यूएस, जहाँ पर एक ब्लैक मैन वाज फॉल्सली अक्यूज्ड। वेल, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो एथिकल और मॉरल डिलेमा क्रिएट करते हैं। एआई के यूज़ को रेगुलेट करना क्रिटिकल है। किस एरिया में एआई का यूज़ होना चाहिए और किस में नहीं? ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी? सबको इक्वल एक्सेस कैसे मिलेंगे? ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एआई की रेस में अपनी जगह बना चुके हैं। बट एज वी सॉ, एआई इज़ नॉट फ्यूचर, इट इज़ ऑलरेडी हियर. So even if you are a student, a teacher, a musician, a government employee, lawyer, doctor, or any other professional, start exploring AI tools. AI can empower us only if we upskill. If there are any feedbacks or questions you would like to discuss, let's do that in the comment section. And if you like this video, help us in growing our channel by subscribing and clicking the bell icon.